Good evening and welcome to this episode of Beyond Classroom. Friends, whether you are going to a supermarket or going to a restaurant, whenever you are buying food, whether it is in packaged form or in a restaurant, you are not sold food, but you are sold a promise. A promise that this particular food is uh, safe to consume, and sometimes even they are labeled as pure and healthy. ऐसा बोला जाता है कि जो फूड आपके प्लेट पे है, either it can be the strongest medicine or the slow poison. So you should be able to know what is on your plate. And for this, there are different regulations and framework from the government of India. Recently, you must have heard that an IS officer, Tukaram Munde, has been in news regarding the food safety issue in Maharashtra. Also, there has been some stricter measures being taken by FSSAI. So, in today's episode, we are going to delve into this particular topic in depth and try to decipher the different aspect of this issue, especially from civil services exam point of view. So sir, Manjul sir, my first question is to you कि सर जो ये न्यूज़ में है IAS ऑफिसर तुकाराम मुंडे वो न्यूज़ में क्यों है अभी? What is the reason? Sir, in May 2026, he joined as Commissioner, Maharashtra Food and Drug Administration. The moment he joined, he asked the entire agency to be vigilant and for strict enforcement of all the rules and regulations as well as the guidelines. अब ऐसा नहीं है कि जैसे आप मूवीज में देखते हो कि आपको रैंडम रेड्स करने हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में देयर विल बी एनफोर्समेंट ऑफ ऑल द रूल्स एंड द गाइडलाइंस. So based on his, the department started, proper investigation, proper inquiry, vigilance as well as search regarding the adulterated and poor quality products in the item which are available. So जून से ये process start हुआ. In fact, late May, June से this process started. So it started in earlier it focused mainly on adulteration in milk. क्योंकि adulteration in milk is a very kind of serious issue because it affects mass at large. It affects mass at large because most of the people and even the children, they consume milk, and if they are consuming adulterated milk, then it creates uneven kind of damage to them, and that damage may have very serious and effect. अब क्या हुआ कि इन्होंने जब किया अपना रेड्स, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन वाज स्टार्टेड, देन व्हाट वाज फाउंड कि आपको नॉट ओनली देयर वाज वाटर वाज मिक्स्ड इन द मिल्क, सिर्फ यही नहीं था, आपको सिंथेटिक मिल्क वाज सोल्ड एज प्योर मिल्क, यानी कि आपके जो डिटर्जेंट्स होते हैं, केमिकल डिटर्जेंट्स एंड ऑल, वो भी सोल्ड किए जा रहे थे एज अ प्योर मिल्क, जिसके यानी कि जो रिपरकशंस है ना, दे आर गोइंग टू बी टू डेंजरस. तो दिस स्टार्टेड, एंड जनरली अभी तक हम क्या देखते आए थे कि यू आर जस्ट चेकिंग द अडल्ट्रेशन एट द रिटेल लेवल, कि आप रिटेल लेवल पे चेक करते हो, फाइनल एट द स्टोर. बट नाउ ही स्टार्टेड चेकिंग इंटायर इंस्पेक्शन इन द सप्लाई चेन management. So in entire supply chain where actually the adulteration is taking place, because earlier what was happening through all the rules and regulations, we are merely focusing on the retail point. So he focused on the entire supply chain कि कहाँ पे हो रहा है, किस किस स्टेज पे हो रहा है, what are the different stages and at what stages, in what manner it can be prevented, it can be checked. तो इसलिए he was highlighted. Now after that, not only milk or other food items also, and then he shifted. अब होता ना कि स्टार्ट किया पहले आपको जून में, then July it shifted to restaurants, quick commerce chains. So in restaurants, canteens, also private canteens, it shifted. Up those restaurants, those canteens where it was found that the hygiene, the most important thing is hygiene in food safety. If hygiene standards were not maintained, it was no proper cleanliness, and all the promises were not fulfilled, then the licenses were cancelled. Many people who were engaged in illegal activities, they were even caught also. Many people were caught, and those establishments which were found to have not been following the standards, those establishments were shut, licenses were cancelled. अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था
जिसकी वजह से न्यूज में काफी हाईलाइट भी हुआ कि आपको हाई कोर्ट में आपको जितने भी हैं रेस्टोरेंट ओनर जो एजेंट आपको एसोसिएशन होता है, तो एसोसिएशन आपको अप्रोच करता है कि व्हाई देयर इज सच काइंड ऑफ सेलेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। तो हाई कोर्ट ने भी क्वेश्चन किया कि द थिंग इज एनी सच काइंड ऑफ एनफोर्समेंट मस्ट फॉलो रूल ऑफ लॉ। हम क्या बात करते हैं? रूल ऑफ लॉ, आपका प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं, एंड एनफोर्समेंट मस्ट बी यूनिफॉर्म इन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कैंटीन। तो दी हाई कोर्ट में ऐसे ही आपको मजाक में कहा भी गया कि आप जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो, व्हाई नॉट इन सेमी पब्लिक एंड पब्लिक कैंटीन, उनको भी चेक करो वेदर दे आर मेंटेनिंग दी स्टैंडर्ड्स और नॉट। जो स्क्रूटनी है, व्हाई दिस स्क्रूटनी इज लिमिटेड टू ओनली प्राइवेट प्लेयर्स, वो पब्लिक के लिए भी, बॉडीज के लिए भी सेम होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे क्या हुआ, जस्ट द नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, आपको क्या हुआ कि टीम दे अप्रोच्ड, दे इंस्पेक्टेड द 3 कैंटीन्स ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। अब आप कहते हैं ना कि ये परफेक्ट एग्जांपल था चिराग तले अंधेरा, जो सुनते हैं हम, कि वहां पे इट वाज फाउंड दैट आउट ऑफ 3 कैंटीन्स, 2 कैंटीन्स दे डिड नॉट हैव द एफएसएसएआई लाइसेंस आल्सो। उनके पास लाइसेंस नहीं था, तो नो दे वर स्टॉप्ड टू फंक्शन, एंड द थर्ड वाज हैविंग द लाइसेंस बट इट वाज नॉट मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स। तो व्हेन इट वाज नॉट मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स, तो उसको आपको नोटिस दिया गया, सो कॉज नोटिस फॉर इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट नोटिस वाज गिवन टू इट। So in this manner, all the restaurants, even Domino's, Pizza Hut, पुणे में तो एक दिन में आपको it also happened that 7 establishments were shut down in a day, which were not maintaining hygiene issues. तो इससे क्या हुआ कि this entire exercise it took place in the state, और जितने भी आपको cities थे, districts थे, जितने भी restaurants थे, not only it was limited to restaurants and shops, supermarket, आपके जितने भी ई कॉमर्स कई ब्लिंकिट आपको स्टोर्स, जेप्टो स्टोर्स, दे वर आल्सो शट डाउन, क्योंकि वहां पे क्या पाया गया था कि जो वेयर हाउसेस होते हैं, वहां पे वेयर हाउसेस में देयर वाज लॉट ऑफ डर्ट, आपको कॉकरोचेस थे, रोडेंट्स थे इन दोस, और नो क्लीनलीनेस वाज देयर, दे आर नॉट मेंटेनिंग एनी स्टैंडर्ड्स एट ऑल, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट। तो अब जब इतनी गंदगी में अगर प्रोडक्ट रहेगा तो हाउ इट विल बी सेफ। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि देयर हैव बीन मेनी वीडियोस कि महाराष्ट्र में जितने भी आपको वेयर हाउसेज हैं, स्टोरेज बॉडीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, दे ऑल हैव फोकस्ड अ लॉट ऑन हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। हर रेस्टोरेंट्स में वीडियोस आ रहे हैं कि अब पहली बार वो साफ सफाई हो, जो महीनों से सालों से जो कहते हैं ना, जो दिवाली में सफाइयां होती थी, वो सफाई अब जो है इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त जो है, अब सावन के समय में वो सफाइयां चलने लगी। इसलिए बहुत न्यूज में हुआ है, आया है, एंड देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इश्यू होता है जो हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स नॉट ओनली गवर्नेंस, जो है गवर्नेंस इज कनेक्टेड टू डे लाइफ, तो जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी पे जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है उसको ये कनेक्ट करता है, उसको हाईलाइट करता है कि हाँ कितनी सारी प्रॉब्लम्स, दीज प्रॉब्लम्स दे आर इन द मार्केट एंड दे मस्ट बी चेक्ड। राइट, इनफैक्ट कुछ फेमस प्लेसेस मुंबई में, पारसी डेयरी, और जो काफी ऑलमोस्ट 100 ईयर से चल रहे हैं, वो भी क्लोज किए गए, फिर उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया गया। तो अब ऑब्वियसली 2 पार्ट में डिवाइडेड है व्यू पॉइंट कि हम बड़े लोगों पे एक्शन ले रहे हैं, छोटों पे नहीं ले रहे हैं, और छोटों पे लेते तो ये होता कि छोटों पे ले रहे हैं, बड़ों पे नहीं ले रहे हैं, बट स्टिल द रूल ऑफ लॉ शुड फॉलो एंड इट शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल। whatever he is doing, if it is in public interest, it should be appreciated, जैसा कि आपने बोला। Sir, the second question is because it is जो IS हैं, he is FDA commissioner, right? तो इंडिया में इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है टू एंश्योर फूड सेफ्टी? सर ये स्टार्ट हुआ 2006 से, एक लॉ बनाया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंडर, जो पहले हमारी कंट्री में फूड सेफ्टी के लिए अराउंड 8 लॉज थे, उन सबको कंबाइन करके एक स्टैंडर्डाइज लॉ बनाया गया, उसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लॉ बोलते हैं। अब प्रीवियसली हमारे यहाँ क्या होता था, जब कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी तो हम लोग रिएक्ट करते थे, वी वर नॉट प्रिवेंटिव। तो फूड सेफ्टी में पहली बार ऐसा देखा गया कि कोई प्रॉब्लम आने से पहले हम प्रोएक्टिवली उसको रोकें, हम एक प्रिवेंटिव मेजर्स लें, और उसी के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्टेटस देने के लिए एक FSSAI बनाया गया, जिसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो 2008 में एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के थ्रू इसको रेगुलेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया। लेकिन सर फूड सेफ्टी इज पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, इट मींस स्टेट और यूनियन दोनों को मिलकर काम करना होता है। तो FSSAI है यूनियन लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसकी जितनी भी एनफोर्समेंट है वो सब
स्टेट लेवल पर होती है. इट मींस इंप्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजरली लाई विद द स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर एक फूड सेफ्टी कमिश्नर अपॉइंट करते हैं, जिसको कमिश्नर फॉर फूड सेफ्टी बोला जाता है या एफडीए कमिश्नर बोला जाता है, जो मिस्टर तुकाराम मुंडे अभी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं. तो वो स्टेट लेवल पे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है. फिर हर डिस्ट्रिक्ट में वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फूड सेफ्टी मेंटेन करना. वो डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के अंदर फील्ड ऑफिसर्स काम करते हैं, और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भी बोले जाते हैं, जिनका काम है एक्चुअली ग्राउंड पर जाकर फील्ड में आइडेंटिफाई करना व्हाट चैलेंजेस आर हैपनिंग. तो ये जो पूरा डेवलपमेंट है, ये यूनियन में लॉ बनकर स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ. तो इस फ्रेमवर्क के थ्रू पूरा एफएसएसआई काम करता है. राइट सर, एग्जैक्टली एफएसएसएआई का रोल क्या है? सर, एफएसएसएआई एक मल्टी डायमेंशनल रोल प्ले करता है, जहां पर कोई भी आप फूड एंड बेवरेज ऑर्गेनाइजेशन अगर आप स्टार्ट करते हो, जिनको एफबीओज भी बोला जाता है, उसकी लाइसेंसिंग और उसकी रजिस्ट्रेशन एफएसएसएआई के थ्रू दे अलाउ. एफएसएसएआई मेंटेन करता है फूड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन. इट मींस अगर हम कोई पैकेज फूड डिलीवर करना चाहते हैं, तो उसकी जो पैकेजिंग होगी उस पर फूड स्पेसिफिकेशन मैंडेटरी है. ये भी एफएसएसएआई रेगुलेट करता है. वो रेगुलेट करता है कि मेरा कोई भी जो पैकेजिंग है, लेबलिंग है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी. वो आइडेंटिफाई करता है कि हेल्थ स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, कि मैं जो फूड प्रोडक्ट बना रहा हूं उसमें हाइजीन का हमें कितना ध्यान रखना है. जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एफएसएसएआई की रिक्वायरमेंट ही है कि अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, उसकी किचन में बेयर हेड कोई भी नहीं जा सकता. योर हेड शुड बी कवर्ड, राइट. तो दिस इज रिलेटेड टू द हाइजीन स्टैंडर्ड्स. दे ऑल्सो हैव अ रिक्वायरमेंट कि आप कुछ भी अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो उसको भी स्टैंडर्ड एफएसएसएआई रेगुलेट करेगा व्हेन इट कम्स टू द फूड प्रोडक्ट्स. उसी के अंडर वो एक मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट भी डिफाइन करते हैं कि इस प्रोडक्ट में इसके बियॉन्ड कोई भी कंटेंट अगर होता है तो दैट फूड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एडिबल. इसीलिए सर, अभी जैसे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपने आप को 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर करते हैं, 100% शुगर फ्री डिक्लेयर करते हैं, उस पर भी एफएसएसएआई ने रेगुलेट किया है दैट यू हैव टू प्रूव दैट यू आर 100% शुगर फ्री. जस्ट मियरली राइटिंग that you are sugar free does not make you sugar free, because आपके अगर प्रोडक्ट में शुगर नहीं है लेकिन आपने कोई ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड किया है जिससे ग्लूकोज स्पाइक हो सकता है, यू कैन नॉट कंसिडर इट एज अ शुगर फ्री प्रोडक्ट. तो ये सब चीजें सर काम कर रहा है एफएसएसएआई. राइट सर, इनफैक्ट इसीलिए डिमांड उठ रही है कि जो आईएएस तुकाराम मुंडे जी हैं उनको एफएसएसएआई का चेयरमैन बना दिया जाए, उनको नेशनल लेवल पे लाया जाए. एनीवेज सर, ये तो सर जो बिकॉज वाई दिस थिंग इज इन न्यूज, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. अब गोइंग टू द बेसिक्स, व्हाट डज एग्जैक्टली फूड सेफ्टी मींस एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट पैरामीटर्स? देखिए, फूड सेफ्टी जैसा कि नाम ही में रखता है, फूड सेफ्टी इट मींस दैट द फूड वी आर कंज्यूमिंग, द फूड आइटम्स वी आर टेकिंग, वो आपको सेफ हैं. इट इज नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ लॉस और एनी काइंड ऑफ डैमेज टू एनी इंडिविजुअल, पब्लिक और सोसाइटी एट लार्ज. तो हियर इन दिस केस वो सेफ्टी की बात करते हैं कि जो खाना आप खा रहे हैं या जो फूड आइटम्स आप खा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अब ऐसा नहीं कि जो डायरेक्टली आप कंज्यूम कर रहे हैं वही, जो इनडायरेक्टली भी आप कंज्यूम करते हैं ऑल दोज आइटम्स, वो क्या वो सेफ हैं. अब यहाँ पे जब बात करते हैं हम सेफ्टी की ना, तो सेफ्टी में हमें लगता है कि हाँ सेफ है, यानी कि कोई मिलावट तो नहीं है, एडल्ट्रेशन नहीं है, या फिर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट नहीं है. तो आपको जो ये सेफ्टी की हम बात करते हैं, फूड सेफ्टी की, तो आप जैसे जितने भी फूड आइटम्स हैं, तो या तो इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द फार्म, या तो फार्म में प्रोड्यूस होगा, या फिर आपको फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होगा. तो आपको व्हाट हैव बीन, जो फूड सेफ्टी है, फूड सेफ्टी डज नॉट ओनली एंश्योर दैट इट मस्ट बी सेफ, हाइजीनिक, इट इंक्लूड्स कि जितने भी आपको पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, आपको मेंटेन किए हैं, एंड whatever ingredients, steps हैं, processes हैं, actions हैं, they are clearly transparently informed to the citizens. इसका मतलब है कि आपको जब फार्म में, फैक्ट्रीज में, when items were produced, what were the steps and the action, क्या क्या फर्टिलाइजर्स यूज हुए हैं, पेस्टिसाइड्स यूज हुए हैं, कार्बाइड्स, आजकल आप जैसे आम खरीदते हो तो होता ना कि कार्बाइड, जीरो कार्बाइड, मैंगोज एंड ऑल, तो ये वेदर दी कार्बाइड्स हैव बीन यूज्ड और नॉट. देन आफ्टर दैट, पहले आपको फूड प्रोड्यूस हुआ,
देन आफ्टर दैट वो प्रोसेस होता है, देन प्रोसेस के साथ आपको क्या होता है कि पैकेजिंग होती है. So in the process and the packaging also, whether the standards have been maintained or not, प्रॉपरली प्रोसेस किया कि नहीं किया. जो आप केमिकल्स देखिए, अब जितने भी स्टेजेस हैं, तब यहाँ पे जब एडल्ट्रेशन की बात करते हैं तो एडल्ट्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, जहाँ पे प्रोसेस और पैकेजिंग, ये एक स्टेज होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा एडल्ट्रेशन होता है. सो नाउ हियर एट दिस स्टेज व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ केमिकल्स यू आर मिक्सिंग. कई बार आप जो है केमिकल्स मिक्स करते हो इन दी आइटम्स. Why you add chemicals such that आप उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सको. तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ आप यू ऐड केमिकल्स. नाउ द केमिकल्स विच यू आर एडिंग, वो केमिकल्स ऐसा तो नहीं है कि वो एक्सीड कर रहे हैं परमिसिबल लिमिट्स, क्योंकि किसी भी केमिकल में कोई भी अगर आप लिमिट आप एक्सीड करते हो तो क्या हो जाता है, डेडली हो जाता है, इट बिकम्स हार्मफुल. प्लस देयर आर मेनी हार्मफुल केमिकल्स विच हैव बीन बैंड, आपको बैन कर रखा है क्लियरली, कहीं वो हार्मफुल केमिकल्स तो आप यूज नहीं कर रहे हो. देन आपका जो एंटायर ट्रांसपोर्टेशन है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी आप आर यू मेंटेनिंग दी स्टैंडर्ड्स और नॉट, ये पूरा फूड चेन है. एंड फाइनली आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन या तो वो रेस्टोरेंट में जाता है या फिर आपको शॉप्स पे जाता है फ्रॉम वेयर यू परचेज, या फिर ई कॉमर्स चेन जो प्रॉपर चेन है वहां पे जाता है, एंड देन इट रीचेज टू दी कस्टमर. तो अब कहते हैं ना ये सिंपल सा कि फार्म या फैक्ट्री से कस्टमर के प्लेट तक की जो एंटायर जर्नी है, इस एंटायर जर्नी में वेदर दैट सेफ्टी हैज बीन मेंटेन्ड और नॉट. तब यहीं पे जैसे अब बात कर रहे थे हम कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तो सबसे पहला और कॉमन पैरामीटर है आपको वही एडल्ट्रेशन का, जिसमें आपका जैसे भी एग्जांपल दिया कि सबसे कॉमन आपका मिल्क में नहीं होता है, वाटर मिक्स कर रहे हैं आप, ऑयल में क्या करते हो आप, चीप ऑयल मिक्स करते हो, पाम ऑयल मिक्स करते हो आप, ऑलिव ऑयल में पाम ऑयल मिक्स कर रहे हो, चीप ऑयल घी में आप बता रहे हो कि आप नहीं होता कि आप सेल कर रहे हो A2 घी, गाउ घी, बिलोना मेथड है, चर्न्ड मेथड है, एंड इन दैट यू आर मिक्सिंग डालडा. ये क्या होता है कि एडल्ट्रेशन है. तो एडल्ट्रेशन में आप क्या कर रहे हो कि प्रोमिसेस आप जो प्रॉमिस कर रहे हो, पहले तो वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर रहे हो, और सेकंड क्या हो रहा है कि इट इज कॉजिंग हार्म टू दी पीपल, क्योंकि लोग तो इस उम्मीद से कर रहे हैं कि जब वो खरीद रहे हैं तो प्योर A2 काऊ घी खरीद रहे हैं या मिल्क खरीद रहे हैं तो प्योर मिल्क है, बट वो उसमें मिक्स है, वाटर मिक्स है, उसमें डिटर्जेंट है, तो हार्मफुल लॉस हो गया. फिर बायोलॉजिकल सेफ्टी की बात करते हैं कि कई बार इन दी प्रोडक्शन या फिर आपको पैकेजिंग में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में कहीं किसी भी स्टेज पे कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पैरासाइट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो तो कहीं ग्रो ना कर गए हों. जैसे आप कई बार देखोगे आप पैकेट खोलते हो तो फंगस फंगस लगे होते हैं, तो जब फंगस आपको विजिबल है तब तो आप इमीडिएटली चेक कर लेते हो, लेकिन अगर उसी फंगस के साथ आपको खाना बना दिया गया है या विजिबल नहीं है तो उस केस में आप ध्यान नहीं दोगे. ये बहुत बड़ा पैरामीटर है. केमिकल सेफ्टी, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे केमिकल सेफ्टी होती है, क्योंकि केमिकल सेफ्टी में हम किस पे फोकस करते हैं, केमिकल सेफ्टी में हम वही फोकस करते हैं, आपको जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स आप यूज कर रहे हो, प्लस आफ्टर दैट हैवी मेटल्स. आज के समय में जैसे मेडिसिन वगैरह में भी हैवी मेटल्स यूज करते हैं, तो आपको लगता है कि ये मेडिसिन जो है हम नेचुरल मेडिसिन ले रहे हैं, इससे तो हमारा कोई लॉस होगा नहीं, कोई हार्मफुल इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं है. पर पता चलता है कि कई बार ऐसे भी मेडिसिन हैं, देयर आर मेनी मेडिसिन जहाँ पे हैवी मेटल्स यूज होते हैं, एंड दीज हैवी मेटल्स वो क्या करते हैं, वो ब्लड में जाके आपको घुस जाते हैं, लीवर डाइजेस्ट करना इट बिकम्स डिफिकल्ट. फिर हम बात करते हैं फिजिकल सेफ्टी. जो फिजिकल सेफ्टी है, इसमें फिजिकल सेफ्टी का मतलब क्या होता है, नो फॉरेन ऑब्जेक्ट मस्ट बी देयर इन द फूड आइटम. तो फॉरेन ऑब्जेक्ट से क्या समझते हैं, आप खाना खा रहे हो, अचानक देखो बाल का एक टुकड़ा मिला खाने में. आज के समय में आप क्या करते हो, आप खाना देख रहे हो कि आपने मिठाई मंगाई, और मिठाई में आप देख रहे हो कि मक्खी निकल गई मिठाई में. तो यहाँ पे कई जगह पे आप देखते हो कि ग्लासेस के टुकड़े हैं, मेटल्स हैं, दीज आर योर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स. तो ये फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं. अगला बात करते हैं हम हाइजीन की, सैनिटेशन की, क्योंकि हाइजीन एंड सैनिटेशन इज प्राइमरी रिक्वायरमेंट, जिस पे पेस्टिसाइड जैसे अभी नितेश सर ने बताया, एग्जांपल दिया कि जितने भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ किचन में, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन, पैकेजिंग से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके वेयर हाउसेस में, जैसे व्हेन वी वर डिस्कसिंग अभी महाराष्ट्र का केस, तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा जो आपको रेट्स हुए कहाँ पे, वेयर हाउसेस में हुए, क्योंकि वेयर हाउसेस में आप चले जाओ वहां पे देखोगे कि एकदम क्लीननेस स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं है, जो किचन हैं, यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं वो साफ सफाई है कि नहीं, जो स्टोरेज है, अब जैसे कई प्रोडक्ट हैं तो कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन में आपको रेफ्रिजरेशन इज रिक्वायर्ड, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, तो अब उसमें भी वेदर आर यू मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स और नॉट. फिर प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग में भी आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे प्लास्टिक, तो अब प्लास्टिक बैन है, बट स्टिल व्हाट यू फाइंड कि मेनी प्लेसेस पे प्लास्टिक आइटम्स में पैकेजिंग है, या फिर लूजली आल्सो दे आर सेलिंग इन दी प्लास्टिक्स.
लेबलिंग। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जहां पे लेबलिंग की बात करते हैं। आज के समय में आप कोई भी पैकेज फूड प्रोडक्ट खरीदते हो, तो आप पैकेज फूड प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप क्या देखते हो उस पे? इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट, यही चीज देखते हो। तो अब जब लेबल कर रहे हो, व्हेन यू आर लेबलिंग द प्रोडक्ट ना, देन व्हाटएवर इंग्रेडिएंट्स यू आर मेंशनिंग, दोज इंग्रेडिएंट्स इट इज प्रेजेंट और नॉट। एक्सपायरी, जो एक्सपायरी है वाकई में वो रियल एक्सपायरी है कि नहीं, वो सेल्फ लाइफ जो है, मेनी आइटम्स हम देखेंगे लेटर ऑन विल डिस्कस की व्हाट आर दी अदर कंसर्न्स रिलेटेड टू इट। तो आपको जो एक्सपायरी है, जो इंग्रेडिएंट्स है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल वैल्यू। आज के समय में आप कोई भी आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हो, उसमें मेंशन होता है न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो आप देखते हो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो अब अगर आप सीरियसली बताना, जितने भी आप टॉनिक्स लेते हो ना, अगर उन टॉनिक्स के आप जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है और जो इंग्रेडिएंट्स अगर आप पढ़ के उनको इनटेक करते तो उसके हिसाब से तो सब कुछ सुपर ह्यूमन होना चाहिए। नॉर्मल ह्यूमन तो होना ही नहीं चाहिए आपके। अब पता चलेगा कि फिर जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें देखते हैं ये डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसी है, ये विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी है। आप इतने सारे न्यूट्रिशन ले तो रहे हो, इट मीन्स कि वो जो लेबलिंग में जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज दे आर सेइंग, दे आर प्रोवाइडिंग, वो प्रोवाइडेड नहीं है। जो एक्सपायरी एंड एवरीथिंग दे आर मेंशनिंग, वो क्लियरली नहीं है। और इसमें हम लास्ट पार्ट पे आते हैं, सरोगेट एडवर्टाइजिंग। राइट। कि थ्रू सरोगेट एडवर्टाइजिंग आप क्या करते हो? मिसलीडिंग आप जो है एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, उसमें यूथ को आप मिसलीड कर रहे हो, स्पेशली यूथ जो हमारा जेनजी है, जेन अल्फा है, आप उसको क्या करते हो? मिसलीड करते हो, मिसडायरेक्ट करते हो। और आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है हेल्दी है, अनहेल्दी है, सुपरस्टार्स आर कंज्यूमिंग दोज प्रोडक्ट्स, आप उससे देख के आप इंस्पायर्ड होते हो, बट द रियलिटी इज रियली डिफरेंट। जेम्स बॉन्ड ने भी किया था सर। और समझ गए कि बाकी लोग भी दाने दाने में हैं। many ठीक है। celebrities are doing that। तो ये भी दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फूड सेफ्टी ना, कि सेफ्टी कैसे पता चलेगा? एक बच्चा है, वो तो देखेगा ना कि हाँ ये सेलिब्रिटी अगर कंज्यूम कर रहा है, वो उसको अपना रोल मॉडल मानता है, तो अब अगर वो कंज्यूम कर रहा है इट मीन्स कि सेफ है। आप तो देखते हो कि सिक्स पैक बना के अपना है, तो उसको लगता है कि हाँ अगर वो कंज्यूम कर रहा है सिक्स पैक के साथ अपने फाइट कर रहा है, तो आप भी कंज्यूम करोगे तो इट इज कंप्लीटली सेफ, आप भी हेल्दी बनोगे, सुपर पावर आपके अंदर भी आएगी। So this is also connected to food safety only. This is also a type of safety. तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, तो कहते हैं ना कि फूड सेफ्टी आपको बड़ा ही ब्रॉड टर्म है, और ये इतना ब्रॉड टर्म है, इतना इंपॉर्टेंट है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, और एक्शंस मस्ट बी टेकन। होता ना कि यू नीड टू एंश्योर आपको क्वालिटी, जो कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा हम फोकस करते हैं क्वालिटी पे, क्वालिटी एंड एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एट ईच एंड एवरी स्टेज। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कई स्टेज पे किया, 5 स्टेजेस पे किया, बट यू आर मिसिंग एट द 6th स्टेज, तो आउटकम तो आपको क्या रहा? आउटकम द प्रोडक्ट विल बी ऑफ पुअर क्वालिटी ओनली, तो इट विल बी नॉट सेफ। तो आपको जो फूड सेफ्टी है, तो हार्म तो पहुंचा ही ना किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी स्टेज पे हार्म हो रहा हो, ये मैटर नहीं करता। इसलिए फूड सेफ्टी ओवरऑल इस पे फोकस जितना होना चाहिए गवर्नमेंट का, एजेंसीज का, नहीं है। दैट इज रियली शॉकिंग। राइट। सर जो इन्होंने बात की, मतलब ठीक है, फूड सेफ्टी के बारे में बहुत ही ब्रॉडली बात कर ली। अब सर हम एक एक्शन देख रहे हैं कि देयर इज एक्शन गोइंग ऑन इन महाराष्ट्र, बट सिमिलर एक्शन इज समवॉट मिसिंग इन अदर स्टेट्स। और जब हम सर डेटा देखते हैं तो वी आल्सो फाइंड कि जो फूड सेफ्टी के जो फॉलो कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स, उसमें काफ़ी गैप है। सो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस? सर इसमें पहले थोड़ा इलेबोरेट फूड सेफ्टी पे करूंगा। सबसे बड़ा चैलेंज जो सर हमारे कंट्री में है फूड सेफ्टी को लेके, अभी हमारा फोकस है कि इस खाने को खाकर हम जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। द फोकस राइट नाउ ऑन फूड सेफ्टी इज टू इंश्योर आवर सेफ्टी फ्रॉम दैट फूड and not to ensure that when I eat that food whether it will provide me some health benefits or not। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमें अपने आप को फूड से बचने के लिए सारी मेहनत करनी पड़ रही है rather than having a food consumed जिससे मैं बाकी चीजों से लड़ने की ताकत लाऊं। और सर इसीलिए बाकी सारे स्टेट में लेक्चर महाराष्ट्र में बिकॉज ऑफ इट हैविंग टू इंपॉर्टेंट सिटीज मुंबई एंड पुणे, जहां पर द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज मोर, so there the consumption of processed foods
consumption of fast food is more, and that is why we are noticing the food safety enforcement over those products. In other states, when we are noticing it, we are noticing it in the forms of other demands and challenges. For example, in Delhi, the enforcement is more in the form of countering the challenges due to the cloud kitchens, because this is the challenge that we have in the metro cities. बाकी स्टेट्स में चैलेंजेस क्या है कि जो हम लोग फूड ग्रेन्स प्रोक्योर कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स में कोई इलेक्ट्रेशन नहीं है, फूड हैबिट्स हर स्टेट के अलग अलग है, तो उन बेसिस पे जो डाइवर्सिटी है हमारी, वो डाइवर्सिटी इन दी एनफोर्समेंट भी देखी जा रही है, जिस वजह से बहुत सारे लेक्चर आ रहे हैं कि हमने स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि स्टेट सब कुछ इंप्लीमेंट करेगा, और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डाइवर्सिटी के साथ इंक्लूड होनी है, और वो डाइवर्सिटी we are not able to implement it at the uniform level in a state. अर्बन एरियाज में हम कोशिश करते हैं इंप्लीमेंट करने की, लेकिन रूरल एरियाज में सर FSSAI के बारे में नॉलेज ही नहीं है, लोग लाइसेंसेस कहां से प्रोक्योर करेंगे, तो इसीलिए बहुत सारे गैप आ रहे हैं, और इसीलिए फूड सेफ्टी इज ओनली लिमिटेड टू फोकसिंग आवर सेफ्टी फ्रॉम दैट फूड. राइट सर, इनफैक्ट 2-3 जो रिपोर्ट आई थी, एक तो मैगी बैन हुआ था, तो इट वाज इमोशनल इशू फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट पीपल. ठीक है, काफ़ी लोग रो रहे थे, सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रेंड किया था वो. देन अभी जो एक कंसर्न, जैसा कि मिल्क के बारे में बताया सर ने, कि मिल्क में जो कोलीफॉर्म है दैट वाज बियॉन्ड दैट लेवल, जो परमिसिबल लिमिट से काफ़ी, और इवन इन द ट्रस्टेड ब्रांड्स जिनको हम काफ़ी ट्रस्ट करते हैं. सर हनी, मैक्सिमम हनी के जो ब्रांड्स हैं उसमें शुगर पाया गया है, और शुगर का ही अल्टरनेटिव हनी हम लोग मानते हैं. राइट. तो जब हनी में ही शुगर है, तो इट मींस अगर किसी को रिप्लेस करने के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आप शुगर को हनी से रिप्लेस कीजिए, तो वही अगर शुगर कंज्यूम कर रहे हैं सर, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा फोकस ये है कि खाने से जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, जिंदा रहने के लिए नहीं खाना है. आपके बात पे याद आ गया, बचपन में होता था गंगाधरी शक्ति शुगर ही आनी है. और सर पनीर है, अब आप समझिए एनालॉग पनीर एक इतनी बड़ी थ्रेट हो गया है. हाँ राइट. कि क्योंकि आप खा तो रहे ब्रेड पोड़ा, लेकिन उसमें जो पनीर है वो सिंथेटिक पनीर है, तो ऑलरेडी आपको ऑयल से भी चैलेंज था, आपको चैलेंज इससे भी है कि जो आप ब्रेड ले रहे हैं उसमें जो फूड ग्रेन इंक्लूड हुआ है उसकी सेफ्टी का कंसर्न है, बेसन में भी थ्रेट है, अब उसमें पनीर में भी थ्रेट आ गया, वही थ्रेट हो गया ब्रेड पकौड़ा. तो मैं वही सर, जिंदा बचने के लिए फूड सेफ्टी चाहिए. राइट. सर अगला जो क्वेश्चन है कि जो फूड सेफ्टी जैसे अभी बात ही हो रही है, तो व्हाट आर द डिफरेंट रिकरिंग इश्यूज रिलेटेड टू मेजर इश्यूज रिलेटेड टू फूड सेफ्टी? देखिए, आज के समय में एट प्रेजेंट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है लास्ट 6 months एंड 1 year में, विच द एजेंसीज पीपल एवरीवन इज फेसिंग, वही आपको एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं. और सेकंड एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको इश्यू है कि नाउअडेज एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स, दैट दोज प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इलीगली. फर्स्ट आपको अब देखिए यहाँ पे कैसे कैटेगरीज है. वन कैटेगरी इज दैट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स आर इलीगली सोल्ड. तो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट इलीगली सोल्ड करते हो तो आप कैसे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट सेल करते हो? यू सेल इट बाय रीलेबलिंग इट. आप क्या करते हो? आप रीलेबल कर देते हो. तो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स जितने भी हैं तो उनकी एक्सपायरी है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक्सपायरी है अगस्त 2026, तो अगस्त 2026 है, आपका प्रोडक्ट सितंबर आ गया, तब सितंबर में आ गया, आपकी कंपनी में ही रह गया, सोल्ड ही नहीं हुआ, आपको इनफैक्ट होलसेलर ने नहीं लिया, रिटेलर ने लिया, कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में वो ब्लॉक हो गया. अब आप क्या करते हो? व्हाट यू आर डूइंग इन सितंबर 2026, यू आर रीलेबलिंग इट. आप क्या कर रहे हो? आप उसको रीलेबल कर ले रहे हो, एंड देन द न्यू एक्सपायरी यू आर मेकिंग इट सपोज मार्च 2027 या अगस्त 2027. तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है, बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू इट आपको हर्सी कंपनी है, आपको उसका एक बहुत बड़ा केस है, ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, वेयर द कंपनी इटसेल्फ अप्रोच्ड द हाई कोर्ट, वो अप्रोच किया कि इन द कंपनी, यानी कि कंपनी के ब्रांड के नेम पे मेनी काउंटरफिट प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड, एंड जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, दोज एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स आर रीलेबल्ड एंड देन अगेन सोल्ड इन द मार्केट, एंड मेनी चेन्स वर फाउंड. इनफैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि यूएस में, यूके में, दुबई में, वहां पे जितने भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दोज हु एक्सपायर और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सपायरी, उनके वर्ज ऑफ एक्सपायरी, दोज प्रोडक्ट्स आर इलीगली.
सोल्ड टू इंडिया, यानी कि आपको इंडिया में मंगाए जाते हैं थ्रू मुंबई, एंड देन अगेन दे आर रीलेबल्ड। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हम बहुत बड़ा टर्म यूज करते हैं नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट। अब नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अब सपोज एनी प्रोडक्ट यू आर परचेजिंग, आप खरीद रहे हो, आज खरीद रहे हो, आज 21 अगस्त है, आपको एक्सपायरी है नहीं होता है कि अगस्त। अब बट द प्रोडक्ट विच यू आर परचेजिंग वो चलता है कम से कम 3 मंथ्स 4 मंथ्स। इट मीन्स आपने खरीदा तो आपने परचेज तो किया, तो उस समय तो एक्सपायर्ड नहीं था, बट डेफिनेटली वाइल इन यूसेज वो तो एक्सपायर हो जाएगी उसकी तुरंत। तो यानी कि वो क्या है, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सपायरी। अब व्हेन इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सपायरी और यू आर परचेजिंग, तो इट्स अ काइंड ऑफ नहीं होता है कि आपको चीटिंग है, लेकिन आपको इनडायरेक्ट वे में चीटिंग है। तो वहां पे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी एक्सपायरी क्लोज है वो इंडिया में मंगाए जाते हैं, एंड देन अगेन रीलेबल्ड। इसमें जैसे एफएसएसआई का रूल भी है कि आपको जैसे एक्सपायरी से पहले आपकी जो सेल्फ लाइफ है उसका या तो 60% टाइम, जैसे आप इंपोर्ट हो रहा है, स्पेशली व्हेन यू आर इंपोर्टिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज, तो इधर 60% ऑफ द लाइफ मस्ट बी देयर, सेल्फ लाइफ वो बची होनी चाहिए, या फिर 3 मंथ इन द एक्सपायरी, विचएवर इज लेस। अगर 3 मंथ एक्सपायरी होनी चाहिए तभी आप इंपोर्ट करा सकते, नहीं तो नहीं करा सकते। ये आपको रूल है, बट इस रूल को भी आपको क्या कर दिया जाता है, दे बाईपास इट एंड देन दे सेल इट। आपने सुना होगा कि लास्ट ईयर दिल्ली पुलिस ने दिसंबर 2025 में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आपको मोर देन 43 kg ऑफ सॉलिड फूड प्रोडक्ट आपको पकड़े थे। आपको मोर देन 14,000 लीटर्स ऑफ बेवरेजेस, जिसमें आप क्या देखते हो कि कोल्ड ड्रिंक से लेके, ऑयल से लेके, चॉकलेट से लेके, चिप्स, मैगी, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ फूड आइटम, जितने भी फूड आइटम थे वो सारे के सारे क्या हो गए थे, रीलेबल्ड। और दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरा मेंशन किया है कि कोऑर्डिनेटेड, सिस्टमेटिक नहीं होता कि ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम पूरा कोऑर्डिनेटेड सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, वेयर मेनी प्लेयर्स आर एंगेज्ड, कई प्लेयर्स आपको यहाँ पे इन्वॉल्व है। एंड जब हम फूड सेफ्टी की बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, तो यू विल बी शॉक्ड टू फाइंड आउट दैट एमएनसी जितनी भी कंपनी है, जैसे नेस्ले इंडिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, दे हैव मेंटेन्ड डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इन डिफरेंट कंट्रीज। जो उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं प्रोडक्ट के वो भी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट हैं। आपको ग्लोबल एक्सेस टू न्यूट्रिशनल इंडेक्स आता है, अकॉर्डिंग टू दैट जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं देयर न्यूट्रिशनल इंडेक्स इज 1.8 आउट ऑफ 5, 2023 की रिपोर्ट है, एंड इन हायर कंट्रीज इट इज 2.3 आउट ऑफ 5। यानी हायर कंट्रीज में द आइटम्स विच यू आर सेलिंग उनमें आपको क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू इज हायर। इंडिया में आप देखोगे कि जैसे हॉर्लिक्स है, बॉर्नविटा है, हॉर्लिक्स एंड बॉर्नविटा में व्हाट यू विल फाइंड दैट शुगर कंटेंट इज टू हाई। फॉरेन कंट्रीज में, यूएस में, यूके में, यू फाइंड दैट द सेम ब्रांड, same product, but the sugar content is low. So we have been talking about sugar being one of the major barrier, or we can say in healthy life, as well as it is promoting different kind of diseases. और वो आप बचपन से ही हॉर्लिक्स है, बॉर्नविटा है, कॉम्प्लान है, इसमें शुगर कंटेंट यू आर फाइंडिंग टू हाई। तो वही होता ना, जैसे अपने नितिश सर बात कर रहे थे कि एडल्ट्रेटेड फूड आइटम है, मीठा रहता है तो टेस्टी लगता है, और टेस्टी लगता है तो अब जवान को नहीं होता कि जीभ को पसंद आ रहा है तो खाया जा रहा है, पता नहीं है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो कई बार जैसे मम्मी मेरी कहती है, बड़ा एक फेमस थिंग कहती थी, जब हम लोग खाने पे बहुत ज्यादा ध्यान देते, यानी खाने पे ही फोकस रखते, तो कहती कि देखो, या तो इंसान, कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए, और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। तो अब जो खाने के लिए जीने लगेंगे ना, तो आप क्या होगा कि योर फोकस विल बी ऑन टेस्ट बर्ड और अपने एपेटाइट। तो जब आप एपेटाइट और टेस्ट बर्ड पे चले जाओगे, तो जैसा नीतीश सर कह रहे थे, यू फॉरगेट अबाउट दी सेफ्टी, यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। अभी प्रेजेंट में आपका एपेटाइट और टेस्ट बर्ड मस्ट बी सेटिस्फाइड। द मोमेंट इट इज सेटिस्फाइड, आपको फाइनल उसका आउटकम क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ इलनेस इट विल बी प्रोमोटिंग, फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ओवरऑल जो हमारी हैबिट्स है ना, दैट हैबिट्स इज अनदर प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि अभी तक हम जैसे प्रॉब्लम बता रहे थे कि एजेंसीज की प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशंस की प्रॉब्लम है, प्राइवेट प्लेयर्स की प्रॉब्लम है, प्राइवेट प्लेयर्स की प्रॉब्लम है, लेकिन खुद की भी प्रॉब्लम है। बारिश हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कि जो समोसे की दुकान है, पकौड़े की दुकान है, गोलगप्पा है, आपको इस समय सीजन में आप देखोगे कि गोलगप्पा वगैरह खाना बहुत जरूरी है, लेकिन आप बारिश के मौसम में गोलगप्पा खाने का अलग मजा है। गोलगप्पे वाले आप नहीं, ऐसे नहीं करें, डोंट प्लीज, आप लोग जितने भी शॉपकीपर, स्ट्रीट वेंडर, तो डोंट टेक मी अदरवाइज, लेकिन आप कहीं आप स्ट्रीट फूड आप जितना भी देखते हो जो टेस्टी होता है, तो स्ट्रीट फूड बगल में नाला बह रहा है और वहीं पे स्ट्रीट फूड है, तो स्ट्रीट फूड में जो है आपको टेस्ट है, कंज्यूम किए जा रहे हो, आपको पता है कि बगल में है, गंदगी है, अनहाइजीनिक होगा,
तो हैबिट्स भी तो नहीं है। तो फूड सेफ्टी के लिए ऐसा नहीं कि सब रिस्पॉन्सिबल, वी आरसेल्व्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इसमें right, सर sir. मैं एक चीज और ऐड करूंगा, जो चैलेंजेस हैं, अगर हम देखते हैं सारे हम रेगुलेशंस फॉलो भी करते हैं, अगर कोई फूड प्रोडक्ट है उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, अब व्हाई डू वी अज्यूम कि जितने भी हमारी कंट्री में कंज्यूमर है उनको पता है हर इंग्रेडिएंट का पॉजिटिव और बेनिफिट क्या है। हमारी कंट्री में ये, और सर ये डिमांड आ रही है, एफएसएसएआई ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हम सिर्फ इसीलिए ये रेगुलेशंस नहीं बना रहे हैं क्योंकि कंपनीज का इससे लॉस हो सकता है। अब इंडिया में किसी फूड प्रोडक्ट पे नहीं लिखा होता है दैट इट इज अ हाई शुगरी प्रोडक्ट या इट इज अ प्रोडक्ट विच विल लीड टू इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल, जो बाकी कंट्रीज में, क्योंकि वहां कंपलसरी रेगुलेशंस हो गई हैं। क्योंकि इफ आई एम नॉट अ पर्सन हु इज अवेयर अबाउट दिस इंग्रेडिएंट, मुझे नहीं पता कि अगर मेरे खाने में मोनोसैकेराइड ज्यादा होंगे तो मेरी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अगर वो ज्यादा भी है तो मैं उस चीज को ध्यान नहीं दूंगा। अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाई डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स, बिकॉज हर किसी को न्यूट्रिशनल वैल्यू की नॉलेज होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इतना बेसिक कंज्यूमर कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज अ हाई शुगर ड्रिंक। तो मैं अगर कंज्यूम कर रहा हूं तो मुझे पता तो होगा कि ठीक है इसमें शुगर ज्यादा है, लेकिन सिर्फ इंग्रेडिएंट्स पढ़ने से अगर मैं अपने आप को इन्फॉर्म्ड मार रहा हूं तो ये भी एक फूड सेफ्टी का बहुत बड़ा चैलेंज है। राइट सर, इनफैक्ट एक डेटा है कि जो पुअर डाइट है दैट अकाउंट्स फॉर 56.4% ऑफ द टोटल डिजीज बर्डन इन इंडिया, एंड जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं दैट अकाउंट्स टू रफली 63% ऑफ द टोटल डेथ्स इन इंडिया। इतना है सर। कम रिलेटेड टू दिस ओनली कि फूड सेफ्टी एंड फूड सिक्योरिटी, क्या इसमें कोई लिंकेज है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हंगर इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, सर एसडीजी 2 भी कहता है जीरो हंगर, यानी कि ये पूरे वर्ल्ड का गोल है कि हंगर जीरो करना हमें है। लेकिन हंगर का एक बहुत डिफरेंट डायमेंशन है जो इग्नोर्ड रहता है, दैट इज द हिडन हंगर, दैट इंक्लूड्स स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडर न्यूट्रिशन एंड मैल न्यूट्रिशन। अब मुझे पता है मुझे प्रोटीन चाहिए, ये मेरी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑल्सो इंक्लूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। मैं प्रोटीन कंज्यूम करूं तो कंज्यूम मैं क्या करूं? पॉइंट ये है मुझे खाना है सर प्रोटीन, मैं क्या खाऊं? मैं वेजिटेरियन हूं, मैं नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम नहीं कर सकता। मेरे पास ऑप्शन आया पनीर, पनीर कौन सा? एनालॉग पनीर है मार्केट में, वो मैदा है, वो पनीर है ही नहीं। मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? मैं लेने जाता हूं बेसन, बेसन में मैदा को ही अगर कलर्ड फॉर्म में हमने जूस को प्रोवाइड किया हुआ है तो मैं नहीं कंज्यूम कर सकता। अब मुझे खाना है सर एप्पल, मुझे हेल्थ बढ़ानी है, अपने एप्पल को मुझे कंज्यूम करना है। अब एप्पल तो पैकेज है ही नहीं, मैं शॉप पर गया, शॉप पर मैंने एप्पल लिया, और सर हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम फ्रूट्स चाहते हैं गुड लुकिंग और स्वीट, और सर इस दुनिया में गुड लुकिंग और स्वीट से कोई भी दूर नहीं रह सकता, तो डॉक्टर भी नहीं रह पाएंगे। तो एक एप्पल है जो स्वीट है, डिमांड है स्वीट एप्पल की, तो उसमें मिलेगा आपको स्वीट प्रोडक्ट। यानी कि मुझे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन मुझे कोई एक ऑथेंटिक फूड प्रोडक्ट मिले भी तो जिससे मेरी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हो। यानी कि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए गुड क्वालिटी फूड प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। तो पहले हम वैसे ही परेशान है कि हमारे पास अनअवेयरनेस कि हमें रिक्वायरमेंट है ऑफ आयरन। इंडिया में सर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज अनीमिक एंड अमंग्स द फीमेल दिस डेटा इज मोर स्टार्किंग। अब मुझे आयरन कंज्यूम करना है, मैं आयरन में कंज्यूम क्या करूं? मैं पोमेग्रेनेट कंज्यूम करूं, उसमें आयरन बढ़ा रहे हैं उससे, लेकिन मेरी शुगर बढ़ जाती है। तो चैलेंज इज लैक ऑफ क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स, और वो फूड सेफ्टी के थ्रू ही हमारी प्रॉब्लम एड्रेस हो सकती है। क्योंकि अब मुझे पता होने के बाद भी मैं कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूं, तो यानी कि इट इज द प्रॉब्लम दैट आई विल बी फेसिंग परपेचुअली। Right. So dear friends, this was regarding the today's episode. I hope कि आपको ये episode पसंद आया होगा. We have tried to deal with all the aspects of this particular issue in detail, जहाँ पे ना केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक अवेयर सिटीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जानना ज़रूरी है कि फूड सेफ्टी की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है. So with these words, we are going to end this
particular session, and we'll meet again next week. Till then, keep on appreciating us. Comment कीजिए. If you have any particular topic in mind, put it in comment section. अगर topic अच्छा होगा तो we'll definitely take it up. Thank you very much. Jai Hind.